Hello class. Now in this lecture we will see the thermal analysis of the open and the closed cycle gas turbine. Okay. In the previous lecture we come across or we completed the thing like open cycle gas turbine and the closed cycle gas turbine. Their construction and their working we have already seen. Now the thermal analysis is nothing but the thing on which we supposed to calculating or determining the efficiency of that particular cycle. That is thermal analysis. हम उसका thermal analysis करते हैं. Just for the knowledge purpose, I just taking that thing that is thermal analysis of open cycle and closed cycle gas turbine. कि अब तक हमने जो साइकिल्स देखे रैंकिन साइकिल देखा, हमने ऑटो साइकिल देखा, डीजल साइकिल देखा एंड ड्यूल साइकिल देखा. द एवरी साइकिल हैविंग देयर एफिशिएंसी, सम सॉर्ट ऑफ एफिशिएंसी के टर्म में हम उसका परफॉर्मेंस मेंशन करते हैं. सो टू describe the efficiency or to have the to mention the efficiency, okay, efficiency of that cycle, we supposed to have some sort of formula or we have some input and the output, and on that basis we are calculating the efficiency. And very early I told you the basic formula of thermal efficiency is nothing but net work done divided by the heat supply. The same thing is supposed to apply over here also. No need to mug up the derivation for the exam point of view. It is just for the understanding purpose which I am taking right now. Okay. So the thermal analysis of the open cycle एंड द क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन. सो ये अपना गैस टर्बाइन है. ओपन साइकिल एंड क्लोज साइकिल इसलिए मैंने बोला सेपरेट सेपरेट लेने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज बोथ आर हैविंग अ सेम फॉर्मूला फॉर द थर्मल एफिशिएंसी. ओनली द डिफरेंस इज देयर कंबशन किस तरह से हो रहा है और उसका हीट रिजेक्शन किस तरह से. आई मीन टू से what is the mode of heat addition and what is the mode of heat rejection. On that basis only the open cycle and the closed cycle gas turbine differ with each other. उसका comparison तो हम ले रहे हैं next paper पे, but just sake of time remember that कि open cycle and closed cycle gas turbine are only different in terms of the heat addition and the heat rejection process. Okay. So ये है हमारा फ्लो ब्लॉक डायग्राम फॉर द टर्बाइन. यहाँ कूलर डॉटेड में दिखाया मीन्स जब कूलर रहेगा इन दैट मीन्स इट इज अ क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन. अगर कूलर नहीं है तो इट इज ओपन साइकिल गैस टर्बाइन बिकॉज हीट रिजेक्शन विल टेक प्लेस इन द एटमॉस्फेयर. अगर वो ओपन साइकिल है, अगर वो कूलर में जा रहा है हीट रिजेक्शन प्रोसेस के लिए, then it will be a closed cycle gas turbine because same the working fluid gets circulated towards the compressor and get to the combustion chamber or the heater. Okay. When cooler is there and the closed cycle gas turbine is there. Otherwise closed cycle नहीं है तो open cycle रहेगा, ये कूलर वहाँ नहीं रहेगा और डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में हीट रिजेक्शन प्रोसेस होने वाला है हमारा. ओके. द वर्क डन बाय द टर्बाइन. अभी ये जो है चीज़ यहाँ टर्बाइन जो है टी फॉर टर्बाइन, ये जो टर्बाइन और कंप्रेसर है ये हमारे एक ही शाफ्ट में माउंट है. ओके. एंड जब कंप्रेसर एयर कंप्रेस करके कंबशन चेंबर में भेजता है, कंबशन चेंबर में हीट एडिशन प्रोसेस होके द गैसेस will achieve the highest pressure and the heat content, and will when it allowed to expand on the turbine, then turbine rotate at their high speed, and turbine carrying a two loads, the one load of generator and another load is of the compressor. Okay. It admit a turbine carries a two load, one load of the generator and another load is of the compressor. So the turbine work is the turbine doing their task for the generator as well as for the compressor. So हम turbine work लेंगे. So turbine work का जो formula डायरेक्टली H3 minus H4 is equal to CP under bracket T3 minus T2. अब ये कहाँ से आया? सिंपल है. स्टेडी स्टेट स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा. दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर द कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम के लिए जो हमने देखा है. द सेम फॉर्मूला वी आर अप्लाइंग हियर बिकॉज टर्बाइन है कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम. फ्लूइड आ रहा है, फ्लूइड जा रहा है, मास डजंट मैटर, वॉल्यूम इज कंट्रोल. ओके. तो जो ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है हमारा स्टेडी स्टेट स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, वो हमने अप्लाई किया. सो यू आर गेटिंग दिस थिंग, दिस टर्म Cp T3 minus T2. Okay. After the same thing for the compressor also, compressor का भी अगर हमें वर्क डन निकालना है तो compressor का वर्क डन है H2 minus H1 because it the compressor is located in between the state 2 and state 1. So okay, तो उस state 2 और state 1 का जो भी एंथैल्पी रहेगा हीट कंटेंट,
रहेगा, हीट कंटेंट पर केजी ऑफ द मास ऑफ वर्किंग फ्लूइड जो रहेगा, उसका सब्ट्रैक्शन विल गिव यू द वर्क डन इनसाइड द कंप्रेसर. सो आफ्टर द स्टेडी स्टेट स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हमने यूज किया, सो उसके लिए भी हमें ये मिला. आफ्टर क्यू सप्लाइड, क्यू मतलब हीट सप्लाइड टू वर्किंग फ्लूइड इनसाइड द कंबशन चेंबर और इनसाइड द हीटर, जो भी हमारा हीटर है कंबशन चेंबर है, इसमें वर्किंग फ्लूइड में कितना हीट एडिशन हुआ है, ओके, दैट वी हैव टू कैलकुलेट. अगेन सेम थिंग, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है, यहाँ भी हम अप्लाई कर रहे हैं क्यू सप्लाइड के लिए. सो H3 minus H2 will give you the Cp under root T minus T2. ओके, सो अभी एफिशिएंसी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इट इज नथिंग बट द नेट वर्क डन डिवाइड बाय द हीट सप्लाई. नेट वर्क डन अभी कैसे निकालेंगे, नेट वर्क डन इज सिंपल, दैट इज टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क, टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क. अभी क्या है कि ये जो हमारा टरबाइन है ये वर्क डन कर रहा है, ओके, और ये अपने डेवलप किया हुआ वर्क वो किसे दे रहा है, अपना उसने डेवलप किया हुआ वर्क वो कंप्रेसर को दे रहा है और जनरेटर को दे रहा है. बट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जनरेटर को वर्क जाए, क्योंकि जनरेटर विल डेवलप द इलेक्ट्रिसिटी, कंप्रेसर इलेक्ट्रिसिटी बनाने नहीं वाला, इज इट. सो जो भी कंप्रेसर को जाने वाला वर्क है टरबाइन ने डेवलप किया, समझो फॉर एग्जांपल 100% वर्क अगर कंप्रेसर ने टरबाइन ने डेवलप किया है, सो उसमें से हमारा 30 to 40% वर्क हमारा जाता है कंप्रेसर को, एंड बचा हुआ 70 to 60% जो वर्क है हमारा वो जाएगा जनरेटर को. ओके, सो ये जो कंप्रेसर को 30% वर्क जो गया है हमारा, इट इज नन ऑफ यूज, वो उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी डेवलप नहीं होगा, क्योंकि जो भी टरबाइन वर्क है वो 30% वर्क कंप्रेसर को गया है टरबाइन वर्क, टोटल टरबाइन वर्क में से वो वेस्टेज है. ओके, और कितना कौन सा यूजफुल है, जो जनरेटर को गया है, क्योंकि हमारा एट द एंड मोटो क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करना है. सो यूजफुल वर्क ओनली 70% एंड वेस्ट वर्क दैट इज नथिंग बट 30%. जैसे कि हमारे आईसी इंजन में भी कंप्रेशन में लॉसेस होते हैं, फ्रिक्शनल में लॉसेस होते हैं, कूलिंग वाटर कूलिंग जैकेट्स में हीट एक्सचेंजर के लॉसेस होते हैं. तो दोज आर द वेस्ट वर्क, ओके, निगेटिव वर्क बोल सकते हैं हम उसको. And this 70% is only positive work which can use to feed into the generator to develop the electricity. तो same way यहाँ हमें net work done निकालना है. So WT minus WC मतलब टरबाइन के 100% वर्क में से कंप्रेसर का 30% वर्क हमने माइनस कर दिया, तो हमारा ये जो 70% वर्क है वो हमारा नेट वर्क डन है. ओके, सो W net is equal to टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क, जो भी मिलेगा हमें वो हमारा रहेगा वर्क ऑफ जनरेटर. okay, work supplied to the generator. okay, so the efficiency of cycle अगर हमें निकालना है, so that efficient cycle is nothing but the जो भी हमारा फॉर्मूला आया है the previous one, टरबाइन वर्क माइनस नेट वर्क डन इज नथिंग बट टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क, वो यहाँ पुट किया, और हीट सप्लाई पुट करने के बाद आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन डेरिवेशन का एक्सपेंशन किया और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद एट द एंड यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन दैट इज efficiency of, that is thermal efficiency of this open cycle gas turbine cycle, or you can say this Joule cycle or the Brayton cycle is nothing but the 1 minus 1 upon rp raised to gamma minus 1 upon gamma. यहाँ जो rp है that is nothing but the pressure ratio. okay, it is a pressure ratio. जैसे कि ऑटो साइकिल का जो हमारा ऑटो साइकिल का जो डेरिवेशन था उसमें एफिशिएंसी निकाला था, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी. In that case it was a 1 minus 1 upon rc raised to gamma minus 1 is the efficiency formula for efficiency of auto cycle. okay, thermal air standard efficiency of thermal. but यहाँ जो rc था that was a compression ratio, यहाँ जो rp है that is a pressure ratio. अबे pressure ratio किस चीज के कैसे इंडिकेट करेंगे, तो pressure ratio is of highest pressure divided by the lowest pressure. ठीक है, so highest pressure क्या है हमारा, यहाँ अगर हम जूल साइकिल या ब्रेटन साइकिल देखते हैं, तो ब्रेटन साइकिल इस तरह से है हमारा. ओके, ये हमारा प्रेशर, ये हमारा वॉल्यूम. ओके, इस तरह से है हमारा ब्रेटन साइकिल, इज इट. ये हमारा 1, ये 2, ये 3, ये 4. ओके, सो P2 इज इक्वल टू P3, सिमिलरली P1 इज इक्वल टू P4. सो द RP इज नथिंग बट द रेशियो इन बिटवीन हाईएस्ट टू द लोएस्ट, मतलब P2 by
P1 will be your pressure ratio, or P3 by P4 will be your pressure ratio, because P2 is equal to P3 and P1 is equal to P4. So P2 by P1 और P3 by P4 जो भी है रेशियो वो सेम आने वाला है. So that is your pressure ratio which should be put over here इस जगह पे. So that will be your thermal efficiency का formula. Thermal efficiency is equal to 1 minus 1 upon RP raised to gamma minus upon gamma. और gamma क्या है? This is a gas index जो कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए हम यूज करते हैं. सो द गामा, द वैल्यू ऑफ गामा इज 1.4. एंड क्यों गामा यूज हो रहा है यहाँ? गैस इंडेक्स 1.4 क्यों है, गामा क्यों है? बिकॉज ये जो कॉम्प्रेशन हो रहा है प्रोसेस 1 to 2 और एक्सपांशन हो रहा है प्रोसेस 3 to 4 के बीच में, दैट इज नथिंग बट द आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन. ओके, so because of that only the process of expansion and the process of compression are following isentropic process. okay, isentropic process से ही हमारा compression and the expansion. that's why यहाँ हमारा जो gas index है वो 1.4 आने वाला है. ठीक है, we'll see another thing, that is comparison between open cycle गैस टर्बाइन एंड द क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन. अभी कंपैरिजन है, कंपैरिजन के लिए मैंने 3 से 4 पॉइंट निकाले. ऑन दैट बेसिस वी विल हैव अ कंपैरिजन ऑफ द गैस टर्बाइन, दैट इज ओपन साइकिल गैस टर्बाइन एंड द क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे. ओके, द फर्स्ट कंपैरिजन ऑफ ओपन साइकिल एंड द क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन on the basis of the heat addition process. अभी heat addition process कैसे होता है? In case of the open cycle gas turbine, the compressed air is heated in a combustion chamber. Okay, we will have explanation for that. Okay, उस comparison के लिए explanation करते हैं हम. अगर हम heat addition process देखते हैं, so combustion chamber okay, so this is a turbine, this is a compressor, this is a turbine. okay, this is a closed cycle and combustion chamber. okay, so this will be a heater actually, and this will be a combustion chamber. This is a compressor, this is again turbine. okay, so what they are saying, heat addition process in case of the open cycle gas turbine is take place inside the system or inside the combustion chamber. अब ये जो combustion chamber है उसके अंदर ही हमारा heat addition process होता है. जो भी compressor है वो atmosphere, this is the atmosphere. okay, जो भी हमारा compressor है वो क्या करेगा, एटमॉस्फेयर, दिस इज ओपन साइकिल गैस टर्बाइन फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, जो भी एटमॉस्फेयर है वहां से हमारा कंप्रेसर है वो एयर सक करेगा अंदर एंड इट विल बी कंप्रेस इट एंड आफ्टर दैट फॉरवर्डिंग टू द कंबशन चेंबर. इनसाइड द कंबशन चेंबर इस हॉट एयर के ऊपर हमारा क्या होगा, फ्यूल इंजेक्शन होगा. फ्यूल इंजेक्शन जैसे ही होता है जो भी चार्ज है एयर फ्यूल के साथ मिक्स होके कंबशन करेंगे और एक्सपांड होने के लिए टर्न बार में एंटर होगा. आफ्टर दैट वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा. सो दिस इज ओपन साइकिल. हीट एडिशन प्रोसेस जो होता है यहाँ वो इनसाइड द सिस्टम हो रहा है. ओके, इनसाइड द कंबशन चेंबर हो रहा है. सो दैट्स व्हाई इन ओपन साइकिल turbine the compressed air is heated in combustion chamber. okay, inside a combustion chamber. In case of the closed cycle gas turbine, compressor is heated in heating chamber. so ये है combustion chamber और ये है heating chamber. अब heating chamber में क्या होता है, यहाँ हीट एक्सचेंजर हम यूज करते हैं. इनसाइड द सिस्टम हमारा किसी भी तरह का क्या होता है, कंबशन प्रोसेस नहीं होता. हमारा क्या होता है, आउटसाइड द सिस्टम कंबशन प्रोसेस होता है और थ्रू हीट एक्सचेंजर इनसाइड द हीटर हमारा हीट एक्सचेंज होता है. सो दिस इज अ एक्सटर्नल कंबशन सिस्टम and this is a internal combustion system. okay, so that is the main difference in between open cycle and the closed cycle gas turbine. Heat addition process are take place inside in the closed cycle gas turbine is externally and the heat addition process take place in the open cycle gas turbine is internally. after that, nature of working fluid. In case of the open cycle gas turbine we are using a air fuel mixture as a working fluid. In case of the open cycle gas turbine we are using air fuel as a working fluid, mixture of
air and fuel. After that, in case of the closed cycle gas turbine, we are using a mixture of not a mixture, only air as a working medium, because it is a closed cycle gas turbine and the heat addition take place outside the system. Okay, so जो भी working fluid रहेगा system के अंदर closed cycle gas turbine में, वो क्या रहेगा हमारा प्योर फॉर्म में रहेगा, एंड दैट इज ओनली एयर. बट इन केस ऑफ द ओपन साइकिल गैस टर्बाइन हमारा एयर फ्यूल चार्ज वो वर्किंग फ्लूइड करके काम करता है. आफ्टर दैट हीट रिजेक्शन प्रोसेस. इन केस ऑफ द ओपन साइकिल गैस टर्बाइन, हीट रिजेक्शन प्रोसेस इज टेक प्लेस विद द एटमॉस्फेयर. ओके, जो भी हमारा फ्लूइड है वो क्या हो जाएगा आफ्टर द एक्सपांशन एटमॉस्फेयर में हम छोड़ देंगे. So जो भी heat rejection process है, that is process 4-1 will take place with atmosphere in case of the open cycle gas turbine. In case of the closed cycle gas turbine, heat rejection process वो होगा एक heat exchanger के साथ, okay, and that is inside the system only. Okay, so this is another difference in between open cycle and the closed cycle gas turbine in terms of the heat rejection process. Okay, now we will see fourth point, type of working fluid. Okay, सो यहाँ जो टाइप ऑफ वर्किंग फ्लूइड है, प्रीवियस केस में हमने देखा था नेचर ऑफ वर्किंग फ्लूइड, प्योर नेचर है या मिक्सचर है. सो इन केस ऑफ द ओपन दैट वाज अ मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल, एंड इन केस ऑफ द क्लोज दैट वाज अ ओनली प्योर फॉर्म ऑफ एयर. नाउ वर्क टाइप ऑफ वर्किंग फ्लूइड, अभी टाइप ऑफ वर्किंग फ्लूइड मतलब कि एग्जैक्टली एयर है या कौन सा दूसरा गैस हम यूज कर रहे हैं. सो इन केस ऑफ द ओपन साइकिल गैस टर्बाइन only air can be used as a working fluid, because हम क्या कर रहे हैं ओपन साइकिल गैस टर्बाइन में कंबशन सिस्टम के अंदर कर रहे हैं. सो सिस्टम के अंदर जो हमारा वर्किंग फ्लूइड लगने वाला है वो एयर ही लगने वाला है, बिकॉज कंबशन होने वाला है. जब कंबशन होगा इट मीन्स व्हाट कि हमारा जो गैस है फ्यूल है उसको बंद होने के लिए एयर ही लगेगा, दैट इज ऑक्सीजन लगेगा. दूसरा कौन सा भी गैस, हीलियम, आर्गन वगैरह ये गैस हमें नहीं चलने वाला, या कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ये हमें नहीं चलने वाला. So because of that, to have a true combustion of the fuel inside the system, we require pure air for the as a type of working fluid in case of the open cycle gas turbine. जबकि closed cycle gas, if we talk about closed cycle gas turbine, then there is no such a true combustion take place inside the system. System के अंदर combustion होने वाला नहीं है. Because of that, what will happen? Inside the closed cycle gas turbine, it's not necessary if we should have air as a working fluid. We can have a helium, we can have a argon, but thing is that the fluid which should have a good thermodynamic property, मतलब उसका जो heat absorption रहेगा वो अच्छा, heat absorption अच्छा रहेगा, उसका thermal stability रहेगा, वो reactive नहीं चाहिए. Okay, so inert gas हमें चाहिए which cannot be a react with the other subsystem of the turbine. Okay, so in that manner we should have a working fluid in case of the closed cycle gas turbine. Now wear of turbine blades. Now in case of the open cycle gas turbine, the wear of turbine blades is more, because क्या हो रहा है जो भी चार्ज है in case of open gas turbine वो air and fuel mixture का combustion होने के बाद जो flue gases है वो है, and whenever those flue gases are taking part in a combustion process, okay, that time it will have a carbon soot particle and that get contaminated on the blade of the turbine, and after some period it may responsible for the erosion of the blade, that blade start to erode, and there is a wear of blade is more as compared to the flows, because in case of the flows we are having a pure form of the air. Okay, किसी भी फॉरेन पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल को हम एंट्री नहीं दे रहे इनसाइड द सिस्टम. सो बिकॉज ऑफ दैट द वेयर रेट जो होता है क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन में कम रहता है एज कंपेयर टू द ओपन साइकिल गैस टर्बाइन. नाउ स्पेस रिक्वायर्ड. अब स्पेस रिक्वायर्ड, दैट इज द मोस्ट व्हाट वी कैन से द comparison. On that basis we are selecting a open cycle gas turbine for the aviation, for the rocket propulsion and other uses. Okay, because in case of the open cycle gas turbine जो कि दो मेन प्रोसेस है हमारे हीट एडिशन एंड द हीट रिजेक्शन, वो सिस्टम के अंदर हो रहे हैं, एंड हीट रिजेक्शन प्रोसेस हम एटमॉस्फेयर के साथ कर रहे हैं. बट इफ यू कंपेयर विथ क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन, हम क्या कर रहे हैं क्लोज साइकिल में हीट एडिशन प्रोसेस के लिए हमें एक हीटर लगता है, और उस हीटर में
हमें एक हॉट वाटर सर्कुलेशन करना पड़ता है या कोई फ्लू गैसेस सर्कुलेशन करना पड़ता है, बट वो फ्लू गैसेस सर्कुलेशन करने के लिए एक एडिशनल सिस्टम लगेगा। इन सेम वे हीट रिजेक्शन के लिए हमें कूलर लगेगा। सो द हीट एडिशन एंड हीट रिजेक्शन जो प्रोसेस है वो सरफेस कांटेक्ट से होने वाला है। सरफेस कांटेक्ट मतलब कोल्ड फ्लूइड एंड द हॉट फ्लूइड, इन दोनों के बीच में का जो सरफेस कांटेक्ट है, ऑन दैट बेसिस हीट एडिशन एंड हीट रिजेक्शन प्रोसेस होता है इन केस ऑफ द क्लोज साइकिल गैस टरबाइन। और जितना सरफेस एरिया कांटेक्ट का ज्यादा रहने वाला है, ऑन दैट बेसिस ओनली द एफिशिएंसी ऑफ हीट एडिशन एंड हीट रिजेक्शन डिपेंड करते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट, in case of the closed cycle gas turbine, to have a better efficiency of our heat addition and heat rejection, we require a huge surface area, and उसकी वजह से उसका साइज बहुत ज्यादा लगता है हीट रिजेक्टर का एंड हीट एब्जॉर्बर का। ओके, सो कंपैरेटिवली साइज बहुत बड़ा होता है, उसके वजह से इट इज नॉट यूजफुल टू हैव सच इंजन और सच मशीन पे कि जो मूवेबल है, स्टेशनरी नहीं है। स्टेशनरी अगर होता तो इट इज यूजफुल, बिकॉज स्टेशनरी इंजन है या स्टेशनरी मशीन है तो उसका साइज ज्यादा हो तो मीन इट डजंट मैटर, बट मूवेबल इंजन है या मूवेबल मशीन है तो उसके लिए हमें कॉम्पैक्ट साइज चाहिए। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल या फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट, ओके, दोज आर द मूवेबल। सो जितना हम लाइट वेट रख सकते हैं, जितना हम कम स्पेस रख सकते हैं इंजन का या उस टरबाइन का, उतना अच्छा है। सो बिकॉज ऑफ दैट, in case of the rocket propulsion, in case of the aircraft or automobile, we supposed to use a open cycle gas turbine, because इसके लिए हम किसी भी तरीके का हीट रिजेक्टर या हीटर नहीं लगता, क्योंकि कंबशन चेंबर में ही कंबशन हो जाता है, विच में हैव अ स्मॉल स्पेस। इवन दो जो हमारा ये होता है हीट एक्सचेंजर होता, हीट रिजेक्शन के लिए जो हम यूज करते हैं वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में हीट रिजेक्शन होता है। सो थ्रू साइलेंसर या थ्रू एग्जॉस्ट हमारा जो भी गैसेस है वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। सो नो नीड टू हैव अ सेपरेट सब सिस्टम टू परफॉर्म अ हीट रिजेक्शन प्रोसेस। ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट ये जो है हमारा ओपन साइकिल गैस टरबाइन इज बेस्ट सुटेबल फॉर द compact machinery। Okay, so this is the comparison which we have to mention, which we cover here on the basis of the 4 points, such as the heat addition process, after that nature of working fluid, after that heat rejection process, after that type of working fluid, wear of turbine blades and space required. So on that 6 points we have completed the comparison in between our open cycle and the closed cycle